नमस्कार दोस्तों, ताल एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से मैं दीप कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना की कहर से जूझ रहा है। हमारे देश में भी कोरोना का कहर जो है छाया हुआ है। लोग काफी सारी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारी एक छोटी सी कोशिश, हमारे देश में जो आर्टिस्ट हैं, जो लोग खासकर ऑन स्टेज प्रोग्राम्स करते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस करते हैं, वो लोग कैसे हैं, उनके व्यूज क्या हैं, घर में बैठे वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी ये सोच, उनकी राय आप तक, लोगों तक पहुंचाने का जो बीड़ा हमने उठाया है। जैसा कि हमने पहले अनाउंस किया था, भारत के विभिन्न प्रांतों में बैठे ऐसे आर्टिस्ट से हम मिलेंगे ऑनलाइन, उनसे कुछ बातें करेंगे, उनके राय। तो आइए चलते हैं, उनका व्यूज लेते हैं, कैसे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं इस वक्त। चलिए मिलते हैं उन लोगों से। আমাদের সঙ্গে এখন জুড়বে ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী বাসু। হাই, আমি ওয়েন্দ্রিলা। তাল এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আচ্ছা ঐন্দ্রিলা, তুমি তো জানো সারা বিশ্ব এখন এই করোনা নিয়েই লড়ছে। আমাদের দেশে তো গত কয়েক মাস ধরে লকডাউন চলছে। তুমি এই লকডাউনে কেমন আছো বা কি চিন্তা করছো বলো তো? আমাদের যারা এই সারা ভারতবর্ষে আর্টিস্ট আছে তাদের নিয়ে কি ভাবছো? হ্যাঁ, বিগত কয়েক মাস ধরে করোনার পরিস্থিতির জন্য সত্যি একটু প্রবলেম হচ্ছে। সারা বিশ্ব জুড়ে যেটা হচ্ছে সেটা সত্যি মানুষের জন্য খুব অসুবিধাজনক। আর আমরা যে ধরনের স্টেজ প্রোগ্রাম করি সেই ধরনের আমরা তো মানুষকে আনন্দ দিয়ে থাকি। এবারে যেহেতু আমরা মানুষকে আনন্দ দিয়ে থাকি, আমাদেরও সেই আনন্দটা আমরা উপভোগ করি, ওনাদের আনন্দটা আমরা উপভোগ করি। তার জন্য একটু তো প্রবলেম হচ্ছেই আমাদের, মানে আমরা এন্টারটেনমেন্টও দিতে পারছি না, আমরা নিতেও পারছি না সেই আনন্দটা, যার জন্য একটু প্রবলেম তো হচ্ছে। আর খালি আমাদের প্রবলেম হচ্ছে না, যারা দর্শক তাদেরও একটু প্রবলেম হচ্ছে। কোনো এন্টারটেনমেন্ট, কোনো কিছু প্রোগ্রামিং হচ্ছে না, কোনো কিছু হচ্ছে না। তাই আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন খুব শীঘ্রই করোনা মুক্ত হয়ে যায় যেন আমাদের দেশটা। আচ্ছা ঐন্দ্রিলা, বলো তো তুমি কি মনে করছো, কবে অব্দি এই পরিস্থিতি স্থিতিশীল হবে, আবার কবে অন স্টেজ আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে তোমার? আমরা আশা করছি দুর্গাপুজোর মধ্যেই আমরা আবার স্টেজ শো করতে পারবো। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, দুর্গা মায়ের কাছে প্রার্থনা করছি, খুব শীঘ্রই যেন এই করোনা মুক্ত যেন হয়ে যায়। ঐন্দ্রিলা, তুমি কি আমাদের ভারত সরকারকে বা আমাদের রাজ্য সরকারকে কোনো বার্তা দিতে চাও বা তাদের কাছে কোনো তোমার অ্যাপিল আছে যেটা তুমি করতে চাও? হ্যাঁ, পরিস্থিতি সত্যি খুব জটিল আমাদের জন্য। আমরা যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বা যারা টেকনিশিয়ান আছে, যারা গায়ক গায়িকারা আছে, প্রত্যেকের জন্য এটা ভীষণইভাবে একটু অসুবিধা হচ্ছে। এই ব্যাপারে আমরা সরকারকে বলবো, যদি এই দিকটা একটু দেখে তাহলে খুব ভালো হয় আমাদের জন্য। মানে আমাদের তবলাবাদক, গিটারিস্ট, যারা মিউজিশিয়ান যারা আছে, ইভেন যারা গায়ক গায়িকারা আছেন, তাদের জন্য যেন একটু দেখে, এটাই আমাদের বার্তা সরকারের কাছে। ঐন্দ্রিলা, তুমি তো তাল এন্টারটেনমেন্টেরই একজন যোদ্ধা, একজন সিঙ্গার। এই তাল এন্টারটেনমেন্টে এই উদ্যোগটা তোমার কেমন লাগলো? তাল এন্টারটেনমেন্টে এই উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আর এদের উদ্যোগটা সত্যিই প্রশংসনীয়, খুবই ভালো। ঐন্দ্রিলা, আমাদের সঙ্গে জড়বার জন্য তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। নমস্কার। अभी हम हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अरूप जी को। अरूप जी लखनऊ में रहते हैं। अरूप जी, आप क्या प्ले करते हैं और आपके ग्रुप का नाम क्या है, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं? तो मैं परकशनिस्ट हूँ और मेरे ग्रुप का नाम क्लास म्यूजिकल ग्रुप है। अरूप जी,
वर्ल्ड इज बैटलिंग विद लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। हमारे देश में भी ये कैब चल रहा है। ऐसे में एक म्यूजिशियन होने के नाते आप इस वक्त क्या महसूस करें? महसूस क्या कर रहा हूँ, बेसिकली वो प्लेटफॉर्म मिस कर रहा हूँ। और जो एक हम लोग एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं। वो एंटरटेनमेंट जो पब्लिक को एंटरटेन करना, उनके अप्लॉज वगैरह गेन करना, वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो आप लोग तो लाइव शोज करते हैं, साल भर में तकरीबन कितने शोज आप लोग कर लेते हैं? एग्जैक्टली तो मैं फिगर नहीं बता पाऊंगा, बट ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि इन बिटवीन 45 to 50 शोज थ्रू आउट देयर हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, ये पिछले कई महीनों से जो सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसे में किन किन मुश्किलों का आप लोग सामना कर रहे हैं? मुश्किलों का जहाँ तक बात है, तो सामना हम लोग वैसे तो यही है कि हम लोग प्लेटफॉर्म मिस कर रहे हैं, प्रोग्राम्स वगैरह नहीं हो रहे हैं। हम लोग सब घर में लॉकडाउन खुद ही घर पे हैं, तो एक जो कनेक्टिविटी हम लोग की पब्लिक के साथ होती रहती है, उसी को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और उसी से रिलेटेड जो छोटी मोटी मुश्किलें हैं वो कर रहे हैं। अरब जी, आपको क्या लगता है कब तक ये स्थिति सामान्य हो सकती है? अगर मान लीजिए पूरे साल भर में स्थिति सामान्य नहीं होती, तब क्या होगा? एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग इससे बाहर निकल पाएंगे, और फिर से हम लोग अपने उसी प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी होता है, शोज वगैरह हम लोग करेंगे। पब्लिक से हम लोग उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ते रहेंगे, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्द हम लोग इससे बाहर निकल पाएंगे। अच्छा अरुण जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, आपकी पूरी टीम हमारे देश में जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, उसमें सिंगर भी हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, साउंड के लोग हो सकते हैं, लाइट के लोग हो सकते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? देना यही चाहेंगे कि ये जो पैंडेमिक कोविड-19 से जुड़े हम लोग सभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी लोग हम लोग इससे अफेक्टेड हैं, और सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ इससे जुड़े कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ प्रॉब्लम्स आई है। बट बी पॉजिटिव और हमेशा आगे के लिए सोचिए, अच्छा होगा। ये प्लेटफॉर्म नहीं तो इसका कोई ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म आएगा, तो हम लोग फिर से कनेक्ट हो पाएंगे म्यूजिक के थ्रू। क्या आप हमारे देश की सरकार से कोई गुजारिश करना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे कि इन लोगों के बारे में कुछ सोचे, कुछ करे? वैसे तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इसको जल्द से जल्द कंट्रोल करने के लिए। और लेकिन जैसे दूसरे लोग हैं, सब कोई ना कोई प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। हम लोग भी प्रोफेशनली वी आर म्यूजिशियंस, वी आर आर्टिस्ट, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट हम लोग के साइड को भी थोड़ा कंसिडर करे, और दूसरे लोगों की तरह हम लोग के लिए भी कुछ सोचे कि हम लोग इसको कैसे इससे दोबारा जुड़ सकते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ताल एंटरटेनमेंट का ये इनिशिएटिव है, देश के विभिन्न प्रांतों में जो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों की सोच, वो क्या सोच रहे हैं, ये लोगों तक पहुंचाने का, ये आइडिया आपको कैसे लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ताल एंटरटेनमेंट को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, और उनका जो ये इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये जो स्टार्ट किया है, इसके थ्रू हम लोग सब आपस में एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भविष्य में भी हम लोग इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक में और सबके बीच में आते रहेंगे। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। থ্যাংক ইউ। আমরা আজকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে গেছি একজন ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার অজয় দেকে। আজকে ওনার সঙ্গে আমরা কিছু কথা বলবো, আলাপ আলোচনা করব। মিস্টার অজয় দে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা অজয় বাবু, আপনি তো জানেন আজ সারা বিশ্ব এই করোনা মহামারী প্রকোপে জর্জরিত। আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের দেশ, সেখানেও এই করোনা এসে পৌঁছেছে, এবং বিগত বেশ কয়েক মাস ধরে, 3-4 মাস ধরে আমাদের দেশে লকডাউন চলছে, এবং আমরা সকলেই প্রায় ঘরে বসে আছি। এই যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সারা বিশ্ব জুড়ে, বিশেষ করে আপনাদের মতন শিল্পী যারা লাইভ শোজ করেন, যারা ক্লাসেস করেন, তারা খুব সমস্যার মধ্যে নিশ্চয়ই আছেন। এই পুরো ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন, বা এটাকে কিভাবে আপনি এক্সপ্লেন করবেন? সারা
ভারতবর্ষ না, সারা বিশ্বেই আজকে এই করোনা মহামারীর প্রকোপ চলছে। সারা বিশ্ব খুবই প্রবলেমের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আমি অন্যান্য জগতের মানুষদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমি পার্টিকুলার যারা মিউজিশিয়ান বা যারা কালচারাল ইভেন্টে মানুষ যারা যুক্ত, তারা খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। কারণ তাদের তো অ্যাকচুয়ালি নির্ভর ক্লাস এবং প্রোগ্রাম। যারা ক্লাস করে না, শুধুমাত্র প্রোগ্রামের উপর ডিপেন্ড করে, তো তারা বছরে প্রচুর প্রোগ্রাম করে। কিন্তু আজকে এই যে একটা সমস্যা এসেছে, হ্যাঁ সারা বছর প্রোগ্রাম করে যেটুকু সঞ্চয় করেছে সেটা খুব সাময়িক, কিন্তু এই লং টাইম সঞ্চয়টা সেটা নেই। ফলে পার্টিকুলার কালচারাল ইভেন্টে যারা রয়েছে তাদের খুবই খারাপ অবস্থা এবং খারাপ দিন কাটছে। একদমই ঠিক বলেছেন আপনি। তো আপনার হিসেবে আপনার কি মনে হয়, আপনার এটা নিজস্ব একদম মতামত, যে কবে অবধি আমরা এই মহামারীর প্রকোপ থেকে বেরোতে পারবো? কবে আমরা স্বাচ্ছন্দ্যে অনুষ্ঠান করতে পারবো, বা যে যারা ক্লাসেস করেন সেগুলো করতে পারবো? স্বাভাবিক কবে হবে, এটা আপনার কি মনে হয়? স্বাভাবিক কবে হবে আমরা কেউই জানি না, কারণ এটা তো আমাদের কারোর হাতেই নেই। দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে প্রকোপটা। জানি না কবে স্বাভাবিক হবে। যেদিন হবে, জবে হবে, তখন যদি অ্যারেঞ্জাররা অ্যারেঞ্জ করে, তখন আমাদের যদি ডাকে, তখন আমরা যাব। আচ্ছা, ধরুন ধরে নিলাম যে এই বছর, এই পুরো বছরটা যদি পরিস্থিতি সামান্য হলো না, তাহলে ধরুন এই যে সেক্টরটা, এখানে প্রচুর লোক যুক্ত আছেন, যেমন সিঙ্গাররা আছেন, মিউজিশিয়ানস আছেন, হাজারো লক্ষ মিউজিশিয়ানস আমাদের দেশে আছেন, সাউন্ড, যারা সাউন্ড নিয়ে কাজ করেন, হাজারে হাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা ইনভেস্ট করে বসে আছেন। এর সঙ্গে লাইটিং আছে, যারা স্টেজ করেন এরা আছে, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের লোক আছে, প্রচুর লোক, হাজারে হাজারে লোক এর সঙ্গে যুক্ত আছে। যদি পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক না হয় এই বছরে, তাহলে কি দাঁড়াতে পারে? আপনার এই সম্বন্ধে, এদের কাছে, এই সেক্টরে যারা আছে কাজ করে, তাদের কাছে বা সরকারের কাছে তাদের জন্য কি কোনো আপনার বার্তা আছে? আপনি কোনো বার্তা দিতে চান? দেখুন, এই বছর যদি এটা স্বাভাবিক না হয় বা পরিস্থিতি ঠিকঠাক না হয়, সেটা পার্টিকুলার বিশেষ কয়েকজনের কথা বলবো না, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ অবস্থা। যারা এই সেক্টরে রয়েছে বা সেক্টরের বাইরে রয়েছেন, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে খুবই খারাপ অবস্থা। আমি পার্টিকুলার মিউজিশিয়ান বা যারা এই সেক্টরে জড়িত, আমি তাদের থেকে বা তাদের জন্য আমি সরকারকে বলবো, পার্টিকুলার এই মানুষগুলোর কথা যদি একটু ভাবেন, খুবই ভালো হয়। ভালো, একদমই সঠিক কথা আপনি বলেছেন। আমরাও সকলে সেটাই চাইব, যে এই যে প্যান্ডামিক চলছে, এটা খুব শীঘ্রই যাতে বিদায় নেয়, আমরা যাতে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরতে পারি, স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে এই পৃথিবী। আচ্ছা অজয়বাবু, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন। আমরা তাল এন্টারটেনমেন্টের তরফ থেকে এই যে উদ্যোগটা নিয়েছি, যারা এই সেক্টরে যুক্ত আছে তারা কেমন আছে, তাদের বার্তা, তাদের চিন্তাধারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগটা আপনার কেমন লাগছে, সেটা যদি আমাদের একটু বলুন। হ্যাঁ, ভালোই লাগছে। কারণ আমরা আজকে বিগত প্রায় 4 মাস হয়ে গেল, 4.5 মাসের বেশি হয়ে গেল করোনা মহামারীর জন্য সারা বিশ্বে, সারা ভারতবর্ষে লকডাউন হচ্ছে বা চলছে। আমরা মিউজিশিয়ান বা সিঙ্গাররা কি খাচ্ছি, কিভাবে আছি, কিভাবে চলছি, জীবনযাপন কিভাবে কাটাচ্ছি, তার জন্য কোনো চ্যানেল আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে, পার্টিকুলার আমাকে জিজ্ঞেস করেছে কিভাবে আমি আছি, কিভাবে দিন কাটাচ্ছি। তার জন্য আমি তাল এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে অজয়বাবু, আপনি যেহেতু একজন ক্লাসিক্যাল সিঙ্গার, রোগটা সামলাতে পারছি না, আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনার পছন্দের যে কোনো একটা গান, তার দুটো কলি যদি শোনান আমাদের দর্শকদের, আমরাও একটু শান্তি পাবো শুনে। এটা আপনার কাছে রিকোয়েস্ট। একটা ছোট্ট করে ঠুংরি শোনাই।
का करूं सजनी आए ना बालमु, का करूं सजनी आए ना बालमु, का करूं सजनी आए ना बालमु। तड़प बीती मोरी, तड़प बीती मोरी, उन बिना रतिया, का करूं सजनी आए न बालमु, का करूं सजनी आए न बालमु, का करूं सजनी आए न बालमु। বাহ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য এবং আপনার এই সুমধুর কণ্ঠ একটা সুন্দর গান শোনাবার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ এবং সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। अर्पिता, हाँ अर्पिता जी, हाय। अर्पिता आप क्या करती हैं? मैं एक डांसर हूँ और अपने खाली समय में मैं थोड़ा बहुत कविताएं भी लिख लिया करती हूँ। अगर आपको मेरी कविताएं सुननी है और उनसे जुड़े रहना है तो मेरी काव्यावृत्ति चैनल जो यूट्यूब में है उसको फॉलो करिए, आपको अच्छी से अच्छी कविताएं सुनने को मिलेंगी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। अर्पिता, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी तो ये कोरोना का कहर चल रहा है, हमारे देश में भी कोरोना छाया हुआ है चारों तरफ, पिछले कई महीनों से लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे में एज ए परफॉर्मर आप क्या सोच रही है इस वक्त? पूरे विश्व में जो ये कोरोना का जो कहर बरसा है इससे सभी को परेशानियां हो रही है। खासकर कि अगर मैं कहना चाहूँ तो हमारे फील्ड से, कला के क्षेत्र से, कला क्षेत्र से डांसर, फिर कोरियोग्राफर, सिंगर्स, म्यूजिशियंस, मेकअप मैन और जितने सारे तमाम ऐसे लोग हैं उनको बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ रही है। जो ऑन स्टेज परफॉर्मेंस किया करते थे उनका सारा काम अभी 2-3 महीने से तो बंद है ही और उन्हें अभी काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है अपने काम को लेकर और बहुत ही टेंस्ड है वो लोग। अच्छा, तो फिर ये जो पिछले कई महीनों से सब कुछ बंद पड़ा है, तो स्टेज शोज भी बंद हैं, ऐसे में किन किन मुश्किलों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, आप क्या समझती है? पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है उसके कारण देखिए, हमेशा तो मॉनिटरी या फिर जो जीविका को लेकर जो समस्या होते हैं वो सब उतना खास शायद दिमाग में असर ना करे, उतना भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो ऑन स्टेज परफॉर्मेंस दिया करते हैं, उनका अपने दर्शकों के साथ एक संबंध होता है। वो अपने दर्शकों को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, अपने परफॉर्मेंस से खुश करने के लिए ही परफॉर्म किया करते हैं ऑन स्टेज। तो अभी जो पैंडेमिक का सिचुएशन है उसकी वजह से ये सब बंद पड़ा है। वो लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे ऑन स्टेज, रिहर्सल्स नहीं कर पा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा नहीं पा रहे अपनी दिल की जो बातें हैं या फिर कुछ भी कहिए, उससे उनको बहुत ही तकलीफ़, मानसिक तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। जैसे कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे अपने काम से। तो बस इतना ही। अच्छा अर्पिता, आपको क्या लगता है कि स्थिति कब तक सामान्य हो सकती है? मान लीजिए अगर ये पूरा साल अगर स्थिति सामान्य नहीं होती तब क्या होगा? मतलब जो ऑन स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं उनका क्या होगा? देखिए, कोई भी नहीं बता सकता कि कब तक ये जो पैंडेमिक है ठीक होगा, और जिस तरीके से ये फैल रहा है ये जल्दी तो ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारी दिल से दुआ है और आशा है कि जल्दी से ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाए। और रही बात स्टेज परफॉर्मेंस की, जो परफॉर्म करते हैं उन्हें तो काफ़ी तकलीफ होगी अगर इस साल कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस ना हो। पूरे देश में जितने म्यूजिशियंस हैं,
या डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना जो पैंडेमिक है वो इस तरीके से फैला है कि कब तक ये ठीक होगा ये कोई भी नहीं बोल सकता। इस वक्त ये रुक तो नहीं रहा है बल्कि और फैल रहा है, और भारत में भी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो इन सब के कारण जो ऑन स्टेज परफॉर्मर्स हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनके मानसिक स्थिति में तो बदलाव आ ही रहे, उनको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। अगर इस साल कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उन्हें खास करके बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कलाकार का जो मेन कर्तव्य है, जो प्रमुख कर्तव्य है, वो है अपनी कला से प्यार करना और अपने कला का प्रदर्शन करना। तो इस वक्त जैसा कि हम सब इस दौर से गुजर रहे हैं, तो पूरे भारत के और पूरे विश्व के जितने भी कलाकार हैं उन्हें घर पर ही बैठे रहना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने मन को मलिन करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग घर पे बैठ के ही रियाज़ करिए, प्रयास करिए, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके सहारे ही आप अपने दर्शकों से जुड़े रहिए, और आशा करते हैं कि ये स्थिति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तब तक के लिए धैर्य धरिए, अपने घर पे सेफ रहिए। अच्छा, आप हमें ये बताइए, ताल एंटरटेनमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ना, मतलब अभी ये लॉकडाउन पीरियड में जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, उनमें सिंगर्स हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, साउंड मैन हो सकते हैं, ये लोग कैसे हैं, इनके बारे में, इनकी बातें या इनका जो मैसेज है ये लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा? ये जो इनिशिएटिव है मुझे तो बड़ा ही निराला लगा, और ताल एंटरटेनमेंट को खासकर कि मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो मुझ तक पहुँचे और मेरे राय लेना उन्होंने ज़रूरी समझा। और ये सारे कलाकारों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है कि वो लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू ताल एंटरटेनमेंट फॉर योर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। হাই পাপিয়া, কেমন আছো? হ্যাঁ, ভালো আছি। আমাদের সঙ্গে এখন আছে পাপিয়া, ও একজন সিঙ্গার এবং হলদিয়া থাকে। আচ্ছা পাপিয়া, তুমি তো একজন সিঙ্গার, প্রচুর স্টেজ শোজ করো। বিগত কয়েক মাস ধরেই লকডাউন চলছে, সারা বিশ্বে প্যান্ডেমিক একটা চলছে, আমাদের দেশেও প্রতিনিয়ত এটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই লকডাউনে বাড়িতে থেকে তুমি একজন সিঙ্গার এবং পারফর্মার হিসাবে তুমি কি ভাবছো, তোমার কি মনে হয়, একটু শেয়ার যদি করো। অ্যাকচুয়ালি পুরো ব্যাপারটা দেখছি বলতে, এমনিতে তো আমরা স্টেজ শো করে থাকি এবং সবাইকে একটা খুশি প্রদান করে থাকি। তো আপাতত ইনকাম নেই ঠিক আছে, কিন্তু আমরা এই খুশিটা করতে পারছি না, বা এই পুজো অনুষ্ঠানগুলো চলে যাচ্ছে আমরা সেটা করতে পারছি না, বা আমি এবং আরও যারা সিঙ্গাররা রয়েছেন। তো এটা একটা খারাপ লাগছে, আর কিছু না। আচ্ছা পাপিয়া, যদি ধরো এই পুরো বছরটাই এই পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক হলো না, তাহলে তোমরা একজন সিঙ্গার হিসাবে এটা কিভাবে নেবে? অ্যাকচুয়ালি স্বাভাবিক কবে হতে পারে এটা তো আমি বলতে পারছি না, বাট এটাই চাইবো যে স্বাভাবিকটা হয়ে একটু খুব তাড়াতাড়ি। এবং আমাদের বাঙালিদের প্রিয় উৎসব দুর্গাপূজা, তো আমরা এতদিন ওয়েট করেছি এবং এত কষ্ট সহ্য করেছি সবাই মিলে। তো যার জন্য চাইবো যে এই পুজো থেকে যদি স্টার্ট হয়ে যায়, বা পুজো থেকে যদি আমরা আবার শো করতে পারি, তো খুবই খুশি হবো এবং খুব ভালো লাগবে। ধরো এই প্রফেশনে যারা আছে তাদের কি তুমি কোনো বার্তা দিতে চাও বা কিছু বলতে চাও? হ্যাঁ, আমি এইটুকু বলতে চাই যে এই পরিস্থিতিতে মন খারাপ করার কিছুই নেই, যেহেতু এতগুলো দিন কেটে গেল। তো এই পরিস্থিতিতে এটা বেশি করে করা দরকার যে আমাদের যে সময়টা আমরা পাই না, সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে আমরা নিজেদেরকে আরও ভালো করে তৈরি করতে পারি। এবং তৈরি করে রাখার পরে যখন আমাদের খারাপ সময় তো সবসময় থাকে না, এই পজিটিভিটি
যখন আবার চলে আসবে পজিটিভিটি ভাবনার সঙ্গে, তখন আমরা নিজেদের পারফরমেন্সটা যেটা দেওয়ার জন্য এতদিন মানে ছটফট করছি সেটা আরও বেটার করে দিতে পারবো, তো আরও বেশি খুশি হবে, তো আরও বেশি ভালো হবে। পাপিয়া, তুমি এবার আমাকে বলো, তাল এন্টারটেনমেন্টের এই যে উদ্যোগটা বা যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে, এটা তোমার কেমন লাগছে? এই যে বিভিন্ন শিল্পীরা কে কেমন আছে এটা মানুষ অব্দি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগটা তোমার কেমন লাগছে? প্রথম কথা আমার এটা খুবই ভালো লেগেছে যে ওনারা আমাদের জন্য এটুকু কমসে কম শেয়ার করার জন্য বা ভেবেছেন, এবং সেই জায়গাটা আমাদের যে মনের কষ্টটা বোঝার জন্য এবং তুলে ধরার জন্য যেটুকু করেছেন খুবই ভালো লাগছে। তো আশা করব মানে ওনাদের এইভাবে আরও এগিয়ে যেতে, আরও এইভাবে আমাদেরকে বাড়িতে বসে এন্টারটেনমেন্ট করার জন্য খুবই ভালো লাগছে। আর আশা করি ওনারা ভালো থাকুন এবং ভালোভাবে। পাপিয়া, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে তোমার ভিউজগুলো শেয়ার করার জন্য। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আমরা আবার ফিরবো। হ্যাঁ, আমিও চাই আপনাদের আমার শুভকামনা থাকলো আপনাদের জন্য এবং লাইনে যারা আছে সবাই জন্য, এবং সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং বাড়িতে থাকুন। বাই। लॉकडाउन विद आर्टिस्ट्स। जी हाँ दोस्तों, हमारी तरफ से ये छोटी सी एक कोशिश हमने की है। उन लोगों की बातें, उन लोगों का सोच जो इस फील्ड से जुड़े हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स जो ऑन स्टेज प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, भारी तादाद में है, लाखों करोड़ों की तादाद में। इस फील्ड में सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, साउंड के लोग हैं, अरेंजर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, काफ़ी तादाद में लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, जो इस वक्त एक अनिश्चयता के अंधेरे में पड़े हैं। नहीं मालूम क्या होगा आगे। यूँ तो चारों तरफ लॉकडाउन खोल दिया जा रहा है, अनलॉक हो रहा है हमारा देश। जो लोग नौकरी पेशा हैं, कई घर में बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कई ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस धीरे धीरे करके संभाल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, ठेले वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, वो भी अपने अपने काम पे धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन ये जो सेक्टर है, जो लोग ऑन स्टेज लाइव प्रोग्राम्स वगैरह करते आए हैं, इन लोगों का पेशा है, रोजी रोटी है, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो डांसर हैं, चाहे वो साउंड के लोग हैं, ये लोग अभी भी अंधेरे में है, टेंशन में है, जो स्वाभाविक है। इसको ज़रा गौर से सोचने की ज़रूरत है। आइए हम लोग मिलकर सोचते हैं। सरकार से भी गुजारिश है, कोई हल निकाले ताकि ये लोग टेंशन मुक्त हों। अभी तो फिलहाल नहीं कह सकते कैसे ये सब होगा, लेकिन कुछ आप लोग सोचें, कुछ हम लोग सोचेंगे, कुछ सरकार सोचेगी, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, ये हम आशा करते हैं। ताल एंटरटेनमेंट एक एंटरटेनमेंट का चैनल है, इसके साथ आप लोग बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए इस वीडियो के बारे में। और ये इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं, जिनसे हमने बातें की, जिनकी बातें आप लोगों ने सुनी, उनके सोच, उनके व्यूज़ आपको हमने सुनाए हैं, दिखाए हैं। ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, खुशी होंगी। नमस्कार।